students, welcome to online class. Today we are going to learn the 8th chapter, water resources, means Jal Sansadhan. We are going to see now what we learn in this chapter. First we are going to learn water management. What is water management? How to manage water. Secondly, different multi-purpose projects of India and multi-purpose river valley projects in Rajasthan. Then we are going to learn water conservation. After this project, why water we have to conserve, what are the different methods for conserving water. Then traditional forms of water conservation in Rajasthan. This part is very much important as most of the questions in the exam is being asked from this traditional form of method. Self-dependence in water. So these are the points which we are going to learn in this chapter. So what are we waiting for? Let's start the chapter with the introduction. Water is a precious gift of nature which provides movement to all the activities on planet Earth. तो planet Earth में हमें जो precious gift मिला है nature के द्वारा वो है water. So it is a precious gift and it provides movement to all the activities on planet Earth. जो भी activities है उसको गति कौन देता है? Water. You can just imagine without water our life comes to still. यानी we cannot imagine our lives without water. 71% of the earth surface is water and 29% is land. तो ये जो total earth है वो 71% जो है water से cover किया गया है और 29% जो है वो land है. So most of the part of earth is covered by water, that is 71%. 97% of this water is formed in the form of saline water in oceans and the remaining 3% is available for our use. तो हम देख सकते हैं जो 71% जो रेशियो उसमें से जो 91% है वो saline water है, salty water है और वो oceans और seas में है और 3% जो है वो हमारे use के लिए available है. Out of this 3% fresh water, 69% water is present in the form of glaciers. अब जो 3% हमारे use के लिए available है, इस 3% में से भी 69% जो water है वो glaciers के form में, ice के form में जमा हुआ है और remaining जो 30% है वो underground water, वो water जमीन के अंदर है, underground. The remaining 1% of this water is used for drinking. अब इनमें से कितना परसेंट बचा हमारे drinking, irrigation purpose के लिए, other economic activities के लिए सिर्फ 1%. So the remaining 1% of this water is used for drinking, irrigation and various economic activities. So availability of potable water in India amounts to 1,869 billion cubic meter. जो total water India में potable in the sense here, potable, it is means पेयजल जो वाटर है वो इंडिया में टोटल 1,869 बिलियन क्यूबिक मीटर है और जिसमें से 1,123 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो हमारे द्वारा मैनकाइंड के द्वारा यूज किया जाता है. Out of this amount 690 billion cubic meter water is formed in the form of surface water. अब इस 1,123 में से भी 690 जो बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है वो सरफेस वाटर है और 433 बिलियन क्यूबिक वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है. सो here it is surface water and this underground water. In India in the year 2000 the total requirement of the water was 634 billion cubic meter. एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है उसे पता लगाया गया कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री में वाटर की वो 2000 ईयर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 634 बिलियन क्यूबिक मीटर है और जो इंक्रीज होगी कहाँ तक 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर इन द ईयर 2025. तो अब जो है ये धीरे धीरे वाटर की जो रिक्वायरमेंट है पोर्टेबल वाटर की वो इंक्रीज होगी 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर 2025 तक. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वाई देयर इज अ नीड ऑफ इंक्रीमेंट बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीज. ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन इज ओनली increasing the need of water. So what is the reason? Due to rapid increase in population, very quick the population is increasing and adverse effects of global warming और जो global warming के जो side effects होते हैं water resources पर, proper management and conservation of water has become the need of the hour. So
वाटर रिसोर्सेज जो है इसकी स्कैसिटी होने की वजह से उनका प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ज़रूरी है। और ये हमारे इस वक्त की बेसिक नीड है कि अगर वाटर को हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड को मीट करनी है तो हमें वाटर को प्रॉपर मैनेज करना होगा और हमें कंजर्व करना होगा ताकि फ्यूचर में इसका यूज़ फ्यूचर की पॉपुलेशन ले सके। इसी थ्योरी को हम इस पाई डायग्राम के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पाई डायग्राम में बताया गया है कि जो 30% वाटर जो अवेलेबल है अंडरग्राउंड वाटर है और ये 69% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है और हमारा जो यूज़ रिमेनिंग हमारे यूज़ के लिए कितना वाटर है 1%। सिमिलरली इसमें बताया गया है कि टोटल वाटर ऑन अर्थ जो है 97% है और इसमें 3% जो है वो हमारे प्योर वाटर है जो ड्रिंकेबल इरिगेशन के लिए यूज आएगा। सो ये पोजीशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इस डायग्राम में बताया गया है। हमारा चैप्टर में है वाटर मैनेजमेंट। सो लेट अस सी व्हाट इज वाटर मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्ट इनटू द सीज थ्रू द रिवर्स। तो मोस्टली जो वाटर हमें रेन के थ्रू मिलता है वो वेस्ट हो जाता है, वो वाटर सिंपली फ्लो होता है सीज या ओशंस में। Proper management of this water is necessary to meet the demand of ever-increasing population and to face the adversities of drought and famine. तो अगर हमें adversities यानी जो ऐसी आपदाएं हैं drought और famine जैसी आपदा को अगर फेस करना है, पॉपुलेशन की जो इंक्रीमेंट हो रही है उसकी नीड्स को मीट करना है तो हमें इस वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ड्यू टू इरेगुलर मानसून, और हम जानते हैं कि ये नीड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो मानसून्स हैं वो इरेगुलर है, इसलिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट एसेंशियल है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन द 5-year plans which have been preventing the adversities such as drought and famine and also assisted in potable water supply। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड को मीट करने के लिए रिवर रेन वाटर्स को कंजर्व करने के लिए मीटिंग द एडवर्सिटीज ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन ऐसी कंडीशंस को फेस करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद में 5-year प्लान्स के थ्रू मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए थे इंडिया में, जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स भी फेस हो जाए और पोर्टेबल वाटर सप्लाई की जा सके। इरिगेशन के लिए डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो है मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स जो 5-year प्लान्स के थ्रू स्टार्ट हुई है वो हमारी हेल्प करता है ड्रॉट फेमाइन कंडीशन को फेस करने के लिए, पोर्टेबल वाटर सप्लाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई हो सकती है और जो डेवलपमेंट है फिशरीज और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में भी ये हेल्पफुल है। Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of India, had called these multi-purpose projects as the temple of modern India. This is very important. Who called the multi-purpose project as the temple of modern India? It is Pandit Jawaharlal Nehru. So now we'll see in India these projects are managed by central and state government. So what are those projects which are managed ऐसे मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मेनली मैनेज किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, हम एक ग्लांस ले लेते हैं उनका। फर्स्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स एंड लुक्स आफ्टर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स सच एज पाकानागर डैम, दामोदर, हिराकुद, कोसी, टेरी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो ये जो डैम्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जाती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, The state governments are running several projects such as चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का जॉइंट वेंचर है वो, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्र प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का वेंचर है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का वेंचर है, मायूरक्षी प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान जॉइंट वेंचर, गंडक प्रोजेक्ट बिहार और उत्तर प्रदेश, मच्छकुंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू रन किए जाते हैं और इनके बीच का जो जॉइंट वेंचर होता है एग्रीमेंट होता है 2 स्टेट्स के बीच में, और 2 स्टेट्स मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं अपने स्टेट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए रिलेटेड विथ वाटर। अगला जो टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। जो हमने पढ़ा ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें स्टार्ट कर दिया गया है और ये क्या क्या प्रोजेक्ट्स और कहाँ पर सिचुएटेड है, इनकी लेंथ क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो हम ये आगे पढ़ेंगे। Multi-purpose projects. A multi-purpose project is a large-scale hydro project often including dams for water retention, canals for irrigation,
water processing and pipelines to supply water to cities and power generation plants. तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या यूज़ क्या होता है? एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये जो वाटर जो है डैम्स के थ्रू वाटर को रिटेन करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं, कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन के लिए वाटर भेजते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू वाटर सप्लाई होती है सिटीज़ में, उससे पावर जनरेशन होता है। तो ये सारी जो हेल्प मिलती है किससे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। These often needs transportation improvements and industrial growth. तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल है। They are also developed to reduce the dangers of flood of the multipurpose projects dangers of flood। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मेनली डेवलप किए जाते हैं इन एरियाज़ में जहाँ पर रेन्स ज़्यादा होती है, उन रिवर का पानी जो फ्लड का रूप ले लेती है, तो उनका एक्सेस पानी जो है वो डैम्स और कैनाल्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अब द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर Alkanandal प्रोजेक्ट, Hirakud डैम प्रोजेक्ट, Mayurakshi प्रोजेक्ट, Damodar वैली प्रोजेक्ट एंड सरदार सरोवर project. For each project we are going to learn in detail in the next class.